Hello my dear students, welcome in my class again. Today I shall teach you a very important topic and the name of the topic is short story number 1, The Gold Watch, और हिंदी में इसको कहेंगे सोने की घड़ी. This story was written by Panjikara Refi. Panjikara Refi was a great Indian essayist, playwright, short story writer and a novelist of Malayalam literature. In 1972, he got Kerala Sahitya Akademi Award. लकड़ी की गाड़ी गाड़ी में घोड़ा घोड़े की दम पे जम डोरा 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 दम उठा के डोरा घोड़ा टग मंडी पचा सब्जी मंडी बड़े पची की बड़े में लगी चंदी घोड़ा घोड़ा डोरा दम उठा के डोरा. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. In the present story, The Gold Watch, he presents a very pitiable condition of a very poor laborer Sanku. Sanku worked in a factory. His income was very low. He earned just 1 rupee per day. He had 2 children and a wife. His children were weak and unhealthy. His wife was pregnant for his 3rd child. Sanku was unable to feed his family with his low income. He was unable to take care his weak children and pregnant wife with his low wages. So he took debts from several persons to fulfill the needs of his family. But now Sanku had a great tension in his mind how to pay back his debts with his low wages. He wanted to pay back his debts as early as possible. So he decided to steal the gold watch of the engineer of his factory. It was an easy way to pay back his debts. One day at lunch break, he went to the engineer's office. The engineer was not there. There was nobody else. The gold watch was on the table. Sanku picked up the watch and put it in the pocket of his trousers. But after stealing the watch, Sanku was much upset and nervous. He was much frightened. He thought that he would be caught and punished for stealing the watch. These thoughts troubled him. So he put back the watch on the table and walked away breathlessly. Actually, Sanku was an honest person. He was not a thief professionally. He stole the watch only to solve his problems. But now his problems remained unsolved. It is all about the story. Now we shall study the short answer type questions of this short story. Now you can see the short answer type questions on your screens. Question number 1. Who was Sanku? Sanku कौन था? What were his problems? उसकी क्या समस्याएं थी? Sanku was a poor laborer. Sanku एक गरीब मजदूर था. He worked in a factory. वह एक फैक्ट्री में कार्य करता था. Money was Sanku's chief problem. धन Sanku की मुख्य समस्या थी. He earned just a rupee per day. वह केवल 1 रुपया प्रतिदिन कमाता था. He was unable to feed his family. वह अपने परिवार को खिलाने में असमर्थ था या पालन पोषण करने में असमर्थ था. He had also taken debt. वह कर्ज भी ले चुका था. From many persons
बहुत से व्यक्तियों से, वह बहुत से व्यक्तियों से कर्ज भी ले चुका था, उधार भी ले चुका था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर संकुस प्रॉब्लम, संकु की क्या समस्याएं थी? एस लगा लीजिए प्रॉब्लम्स में। व्हाट वर संकुस प्रॉब्लम्स, संकु की क्या समस्याएं थी? एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम, और उसने उनको सुलझाने के लिए क्या योजना बनाई? संकु वॉज ए पुअर लेबरर, संकु एक गरीब मजदूर था। ही अर्न जस्ट ए रुपी पर डे, वे केवल 1 रुपया प्रतिदिन कमाता था। ही वॉज अनेबल टू फीड हिज फैमिली, वह अपने परिवार के पालन पोषण के लिए असमर्थ था। ही हैड ऑल्सो टेकन डेप्ट फ्रॉम मैनी पर्सन, उसने कई व्यक्तियों से धन भी उधार लिया था। टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए। ही डिसाइडेड टू स्टील द गोल्ड वॉच, उसने सोने की घड़ी चुराने का निर्णय किया। ऑफ द इंजीनियर ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री के इंजीनियर की। अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए उसने फैक्ट्री के इंजीनियर की सोने की घड़ी को चुराने का निर्णय किया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड संकु स्टील द वॉच, संकु ने सोने की घड़ी क्यों चुराई? और व्हाट मेड संकु डिसाइड दैट ही हैड नो अदर चॉइस बट टू स्टील, संकु ने क्यों निर्णय लिया कि उसके पास चुराने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है? और व्हाट मेड संकु स्टील द गोल्ड वॉच, संकु को सोने की घड़ी चुराने के लिए किसने बाध्य किया? आंसर, संकु वॉज ए पुअर लेबरर, संकु एक गरीब मजदूर था। ही हैड नो मनी, उसके पास कोई धन नहीं था। फॉर हिज सिक चिल्ड्रन, अपने बीमार बच्चों के लिए। एंड प्रेग्नेंट वाइफ, और गर्भवती पत्नी के लिए। ही हैड टू पे हिज डेब्ट्स, उसे अपने कर्जों को चुकाना था। सो ही डिसाइडेड टू स्टील द गोल्ड वॉच, इसलिए उसने सोने की घड़ी चुराने का निर्णय किया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड संकु नॉट गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल डेज, संकु को कई दिनों तक नींद क्यों नहीं आई? संकु कुड नॉट स्लीप, संकु सो नहीं सका। फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक, संकु कई दिनों तक सो नहीं सका। बिकॉज ही हैड ए लॉट ऑफ डेब्ट ऑन हिज हेड, क्योंकि उसके सर पर ढेर सारा कर्जा था। एंड हिज इनकम वॉज वेरी लो, और उसकी इनकम बहुत थोड़ी थी। टू पे हिज डेब्ट, अपने कर्जे को चुकाने के लिए। संकु कई दिनों तक नहीं सो सका क्योंकि उसके सर पर ढेर सारा कर्जा था और कर्ज चुकाने के लिए उसकी इनकम बहुत थोड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड संकु कर्स हिमसेल्फ, संकु ने अपने आप को क्यों कोसा, क्यों अभिशाप दिया? कर्स का मतलब अभिशाप देना, कोसना। आंसर, संकु हैड अ वाइफ, संकु के एक पत्नी थी। एंड 2 चिल्ड्रन, और 2 बच्चे थे। संकु के एक पत्नी और 2 बच्चे थे। वन डे संकु सा दैट हिज वाइफ वाज प्रेग्नेंट, एक दिन संकु ने देखा कि उसकी पत्नी गर्भवती थी। फॉर एनदर चाइल्ड, एक दूसरे बच्चे हेतु। एक दिन संकु ने देखा कि उसकी पत्नी एक दूसरे बच्चे के लिए गर्भवती थी। ही फेल्ट, उसने महसूस किया। दैट ही वॉज रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदार। ही फेल्ट, उसने महसूस किया। दैट ही वॉज रेस्पॉन्सिबल, कि वह जिम्मेदार था। फॉर इट, इसके लिए। उसने महसूस किया कि वही इसके लिए जिम्मेदार था। एंड कर्स्ड हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को कोसा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट स्टॉप्ड संकु फ्रॉम स्टीलिंग द वॉच इन द बिगिनिंग, संकु को किसने रोका? व्हाट स्टॉप्ड संकु, संकु को किसने रोका? फ्रॉम स्टीलिंग द वॉच, घड़ी चुराने से। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में। संकु को शुरुआत में घड़ी चुराने से किसने रोका? और व्हाई डिड संकु हेजिटेट, संकु क्यों हिचकिचाया? एंड वॉज अफ्रेड, और क्यों डर गया? ऑफ स्टीलिंग द वॉच, घड़ी चुराने से। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में।
शुरुआत में घड़ी चुराने से सनकू क्यों हिचकिचाया और क्यों डरा? सनकू थॉट, सनकू सोचता था, दैट ही वुड बी कॉट, कि उसको पकड़ लिया जाएगा, एंड पनिश्ड, और दंडित किया जाएगा, फॉर स्टीलिंग द वॉच, घड़ी चुराने के लिए। सनकू सोचता था कि उसे घड़ी चुराने के लिए पकड़ लिया जाएगा और दंडित किया जाएगा। दीज थॉट्स स्टॉप्ड हिम, इन विचारों ने उसको रोक दिया। फ्रॉम स्टीलिंग द वॉच, घड़ी चुराने से, इन विचारों ने उसको घड़ी चुराने से रोक दिया। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइम ऑफ द डे डिड सनकू थिंक was the most suitable time for stealing the gold watch and why? What time of the day, दिन का कौन सा समय, did सनकू think, सनकू ने सोचा, सनकू ने दिन के कौन से समय को सोचा। The most suitable time, सबसे अच्छा समय, सनकू ने दिन के कौन से समय को सबसे अच्छा समय सोचा। फॉर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी चुराने के लिए, एंड वाई, और क्यों। और एट व्हाट टाइम, कौन से समय पर, डिड सनकू डिसाइड, सनकू ने निर्णय लिया, टू स्टील द वॉच, घड़ी चुराने का, एंड वाई, और क्यों। सनकू थॉट, सनकू सोचता था, दैट इंटरवल, की मध्य अवकाश, वाज द मोस्ट सुटेबल टाइम, सबसे अच्छा समय था, फॉर स्टीलिंग द वॉच, घड़ी चुराने के लिए। सनकू सोचता था कि घड़ी चुराने के लिए सबसे अच्छा समय मध्य अवकाश का था। बिकॉज एट दिस टाइम, क्योंकि इस समय, एवरीवन वुड गो, हर एक चला जाता था, आउट, बाहर, फॉर लंच, लंच के लिए, क्योंकि इस समय हर कोई लंच के लिए या दोपहर के भोजन के लिए बाहर चला जाता था। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब हाउ सनकू स्टील द गोल्ड वॉच। डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए कि सनकू ने सोने की घड़ी कैसे चुराई। आंसर, सनकू वेंट आउटसाइड द इंजीनियर्स ऑफिस, सनकू इंजीनियर के ऑफिस के बाहर गया, इन लंच टाइम, लंच के समय में। ही पुट हिज हैंड इनसाइड द हाफ ओपन विंडो ऑफ द ऑफिस, उसने ऑफिस की आधी खुली खिड़की के अंदर हाथ डाला, एंड स्टोल द गोल्ड वॉच, और सोने की घड़ी चुरा ली। उसने ऑफिस की आधी खुली हुई खिड़की के अंदर हाथ डालकर सोने की घड़ी को चुरा लिया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड सनकू पुट द वॉच बैक, सनकू ने घड़ी को वापस क्यों रख दिया, ऑन द टेबल, मेज पर, सनकू ने मेज पर घड़ी को वापस क्यों रख दिया। वाई डिड ही वॉक अवे, वह क्यों खिसक गया, ब्रेथलेसली, बिना सांस के, वह बिना सांस लिए वहां से क्यों खिसक गया। और व्हाट थॉट्स ट्रबल्ड सनकू, सनकू को किन विचारों ने परेशान किया। आफ्टर स्टीलिंग द वॉच, घड़ी चुराने के बाद सनकू को किन विचारों ने परेशान किया। आंसर, आफ्टर स्टीलिंग द वॉच, घड़ी चुराने के बाद, सनकू थॉट, सनकू सोचता था, दैट ही वुड बी कॉट एंड पनिश्ड, कि उसको पकड़ लिया जाएगा और दंडित किया जाएगा। दीज थॉट्स ट्रबल्ड हिम, इन विचारों ने उसको परेशान कर दिया। सो ही पुट द वॉच बैक ऑन द टेबल, इसलिए उसने घड़ी को वापस मेज पर रख दिया। ही वॉक्ड अवे ब्रेथलेसली, वह वहां से बिना सांस लिए खिसक गया। सो दैट नोबडी कुड सी हिम, ताकि कोई उसको ना देख सके। क्वेश्चन नंबर 10, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ सनकू, सनकू का चरित्र चित्रण दीजिए। और या सनकू वॉज एसेंशियली एन ऑनेस्ट पर्सन, सनकू आवश्यक रूप से एक ईमानदार व्यक्ति था। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, क्या तुम इस स्टेटमेंट से सहमत हो। गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, अपने उत्तर के पक्ष में कारण बताइए। आंसर, सनकू वॉज एन ऑनेस्ट मैन, सनकू एक ईमानदार व्यक्ति था। ही वॉज ए वेरी पुअर लेबरर, वह एक बहुत गरीब मजदूर था।
ही स्टोल द वॉच, उसने घड़ी चुराई। बिकॉज ही हैड नो अदर चॉइस, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा चुनाव नहीं था। टू पे हिज डेप्ट, अपने कर्ज को चुकाने के लिए। उसने घड़ी चुराई क्योंकि उसके पास अपना कर्ज चुकाने के लिए कोई दूसरा चुनाव नहीं था। आफ्टर स्टीलिंग द वॉच, घड़ी चुराने के बाद, ही वॉज टेंस एंड अफ्रेड, वह परेशान और डर गया था। ही थॉट दैट ही वुड बी कॉट एंड पनिश्ड, वह सोचता था कि उसको पकड़ लिया जाएगा और दंडित किया जाएगा। सो ही पुट द वॉच बैक, इसलिए उसने घड़ी को वापस रख दिया। ऑन द टेबल, मेज पर। एंड वॉक्ड अवे ब्रेथलेसली, और वहां से बिना सांस लिए खिसक गया। This is the end of the story, and thanks for watching and learning, and in my next video I shall teach you another important topic. Till then, goodbye.